Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy and welcome back to our Diya Prelims Current Affairs Initiative जहाँ पे हम करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स 2025 के लिए और भी जो यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें भी ये काम आएगा. वी आर डिस्कसिंग इट फॉर दैट. Okay, now talking about today's topic, today we have Project Nexus, Project Pari and मिनामी तोरिशिमा आइलैंड. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे है और जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो भी देखेंगे. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट नेक्सस. यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट्स एंड देन यू हैव टू टेल अकॉर्डिंगली. राइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट नेक्सस. Is it a project by MHA against organized crime to break the nexus? जो nexus है उसको break करने के लिए है. It will standardize the cross-border investigation. How many of the above statements is or are incorrect? आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है. Accordingly, you should choose the option. कई बार statements हम without पढ़े ही जो है we mark and that's why we end up marking wrong answer in the OMR sheet. So you have to tell which of these are incorrect. Okay. So क्या है Project Nexus? Project Nexus was in news because it is a project that RBI has signed up for. RBI ने साइन किया है. India's UPI and FPSS of Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand will be interlinked through Nexus. पर्पस समझ में आ गया. कहाँ किस कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं. Going ahead, the platform can be extended to more countries. एक बार क्विकली समझ लेते हैं इसके बारे में. So this project Nexus has been conceptualized by Innovation Hub of Bank for International Settlement, that is BIS. And what is the purpose? To enhance the cross-border payments by connecting multiple domestic instant payment system. जैसे इंडिया का यूपीआई है, इसी तरीके से और भी कंट्रीज के जो भी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स और यू कैन से फास्ट पेमेंट सिस्टम्स आर देयर, उनको इंटरलिंक करना है थ्रू दिस प्रोजेक्ट नेक्सस. एंड रिसेंटली आरबीआई हैज साइंड दिस नेक्सस. And as we saw, the fast payment systems of Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand will be interlinked through this nexus. And it is designed to standardize the way the instant payment systems will be interlinked. And that way we will help in the fast payment system from one country to the other. So it aims to connect the fast payment system of the ASEAN nations. And in future it is expected that it will be extended to other countries as well. As of now, Indonesia is not part of it. Indonesia will be also joining the platform soon. And this deal, this agreement was signed by RBI on June 30th, 2024. So ये हमारा प्रोजेक्ट नेक्सस है. तो प्रोजेक्ट नेक्सस जो भी अभी आप यूपीआई से विद इन कंट्री करते हो और किसी और कंट्री में अगर जाना है, वहां के भी जो फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको इंटरलिंक करना है. उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि ये पोर्टेबिलिटी रहे. आपको कोई भी, आप अगर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम ना हो, या ट्रेड या कोई भी चीज के लिए. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. प्रोजेक्ट नेक्सस कंफ्यूजन हो सकता है. Let's have a look at the second question. So the second question is related to Project Pari. Project Nexus देखा, Project Pari देखते हैं. Project Pari, which was in news, aims to do what? It aims to provide a platform to uplift the aesthetic and cultural outlook of Delhi, or it aims to provide a new look to rural India through infrastructural development, or C, to bridge the language divide posed by the emerging technologies like AI, artificial intelligence and machine learning, or D, to give a boost to the mental well-being of the adolescent girls. क्या है Project Pari? ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट परी भी न्यूज में था. क्विकली देखें अगर ये न्यूज में क्यों था. तो प्रोजेक्ट परी वाज इन न्यूज ब्रिंगिंग एस्थेटिक ग्रैंडियोर टू दिल्ली. तो ये एस्थेटिक जो आउटलुक है दिल्ली का, उसको चेंज करने के लिए है. क्विकली देख लेते हैं इसके बारे में भी. प्रोजेक्ट परी, which is also known as the Public Art of India, जो परी का फुल फॉर्म है, that is Public Art of India. It aims to simulate the dialogue, reflection, inspiration and contributing overall to the dynamic culture fabric of the nation. And to be specific, this is going to provide a platform to uplift the aesthetic and cultural outlook of Delhi. And the representation of art in public space is particularly significant to showcase nation's rich and diverse cultural heritage. और इसका यही पर्पस है. तो इसमें जो भी sculpture and art that will be showcased in the public domain, public spaces, right? तो ये इसका है. बाकी और भी डिटेल्स जो हैं, those who are following us, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, you can drop a message on this particular telegram id. We will share the pdf with you, right? तो ये आपको डिटेल और भी मिल जाएंगे वहां. तो प्रोजेक्ट परी देख लिया, प्रोजेक्ट नेक्सस देख लिया. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिनामी तोरिशिमा आइलैंड.
Minami Torishima Island से related you have to consider these two statements and then you have to tell how many of the above statements is or are correct. यहाँ incorrect नहीं है, फिर आपको बताना है. It is the easternmost territory belonging to Philippines. Recently, crucial uranium reserves have been discovered on the seabed of island. अब इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कैसे हैं, ये अगर आपको पता है तभी आप मार्क कर पाएंगे. क्वेश्चन कैन कम वेरी डायरेक्ट एज वेल कि मिनामी तोरिशिमा आइलैंड कहां पे है, कंट्रीज दे देंगे, वैसे भी पूछा जा सकता है, एज अ लोकेशन भी पूछा जा सकता है एंड करंट को भी लिंक किया जा सकता है. तो स्टेटमेंट और डायरेक्टली एबीसीडी भी आ सकता है. इट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, वास्ट अमाउंट ऑफ रेयर मेटल्स फाउंड ऑफ रिमोट जापान आइल. तो ये जापान का आइलैंड है, ये जापान का जो ग्रुप है उसका है, फिलीपींस का नहीं है. यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में हमें पता चल गया. मोर देन 230 मिलियन टन्स ऑफ मैग्नीज नोड्यूल्स have been found off Japan's most eastern island according to a survey team who said the work to extract rare minerals will begin the next year. तो ये पता चल गया कि रेयर मिनरल्स हैं, मैग्नीज नोड्यूल्स पाए गए हैं. अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है, सब देख लेते हैं. रिसेंटली द रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड 230 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ मिनरल क्रूशियल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक कार बैटरीज ऑन द सीबेड ऑफ मिनामी तिरोशिमा आइलैंड. दिस आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज द मार्कस आइलैंड एंड इट इज एन आइसोलेटेड Japanese coral atoll in the northwestern Pacific Ocean and it is the easternmost territory belonging to Japan. तो यहां तक हमें क्लियर हो गया. The shape of this island is close to equilateral triangle and this island is formed by a raised coral reef. The terrain is flat with a maximum altitude of 9 meters. If we talk about the climate, there is a transitional zone between the tropical and subtropical climate. So this discovery of manganese nodules contains enough cobalt and nickel, which is very important, which is very essential component for the electric vehicle batteries. So cobalt is important for electric vehicles as it prevents the cathode from overheating while extending the life of the batteries. And if we talk about the manganese, it contributes 61% of the cathode needs of the batteries. तो ये सारी बातें हो गई कि मैग्नीज नोड्यूल में से क्या निकल सकता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में क्यों इंपॉर्टेंट है, और वो उसका जो साइंटिफिक जो रोल है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में, व्हाट रोल इट इज गोइंग टू प्रोवाइड. सो वी शुड नो दैट डेप्थ. ये डेप्थ हमें पता होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है. अगर आपको डेप्थ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्लैरिटी नहीं है देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक. अगर आपने ऊपर ऊपर पढ़ा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डिग डीपर कि उसका एप्लीकेशन कहाँ है, क्या पाया गया, कहाँ पाया गया, उसको स्टैटिक से लिंक करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक करो. अब क्विकली इसके आंसर्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें पता है कि इनकरेक्ट पूछा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. एमएचए वाला भी इनकरेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन वाला भी इनकरेक्ट है. सो द आंसर हियर इज सी. राइट. अभी ये किस पर्पस के लिए वो भी हमें पता चल गया. प्रोजेक्ट नेक्सस किस लिए है, आरबीआई का है, किस चीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, दैट आल्सो वी नो. इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट परी. सो प्रोजेक्ट परी किसके लिए है, प्रोजेक्ट परी का प्लेटफॉर्म हमने देख लिया है. इट इज टू गिव अ बूस्ट टू द कल्चरल आउटलुक ऑफ दिल्ली. सो आंसर इज ए. थर्ड देख लेते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन इज इट इज द ईस्टर्न मोस्ट बिलोंगिंग फिलीपींस. नो. रिसेंटली यूरेनियम. नो. सो द क्वेश्चन वाज आस्किंग व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है. द आंसर इज डी. So this is it with respect to the answers. This is it, and if you want the PDF of the detailed explanation and with answers, then you can drop us message on this particular Telegram ID. We will share the details with you. We will share the PDF explanation PDF along with the answers with you. Now, if you are still struggling for the prelims current affairs, मेंस करंट अफेयर्स, देन वी आर ऑलरेडी रनिंग आवर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स एंड मेंस. और ये हमारा प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. द सक्सेस रेट इज गुड एंड वी डू द होलिस्टिक कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू कैन चेक द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू आर मोस्ट वेलकम. If there is any problem, you can always reach out to us. See you all in the next video.